Hello friends, welcome to my channel Nagin Group of Education. Today we are discussing about NCERT question answers of chapter number 4 Chemical Kinetics, class 12 Chemistry. Now here is your number 1 question, that is in-text question of NCERT. Your first question is, for the reaction R converted into product. R किस में बदल रहा है बच्चे? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. एंड चेंजेस फ्रॉम 0.0 थ्रू m to 0.02 m. m मीन्स मोलैरिटी मीन्स कंसनट्रेशन मीन्स रिएक्टर की कंसनट्रेशन 0.03 से किस में जा रही है 0.02 मीन्स ये फाइनल है और ये कंसनट्रेशन क्या है इनिशियल. और वो कितने टाइम में हो रही है 25 मिनट्स में हो रही है. और कैलकुलेट क्या करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और कितनी कौन सी यूनिट्स में मिनट्स में भी निकालनी है सेकंड में भी निकालनी है. तो पहले हमारे पास टाइम मिनट्स में है तो वी कैन कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट्स. नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन? नाउ रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय डी टी. How can we calculate? Rate is equal to minus dr by dt. Now rate is equal to minus dr by dt. Now here minus final minus initial concentration upon में time. Now minus final concentration is 0.02 minus initial 0.03 upon mid time 25 time. Now if you solve it, so your comes out to be 0.03 minus 0.02, it comes out to be minus 0.01. Now divide it by 25. Now it comes out to be 4 into 10 to the power minus 4. कितने में आएंगे बच्चे 4 into 10 to the power minus 4. अब ये आपकी जो रेट आई है that is 4 into 10 to the power minus 4 moles per minute. ठीक है. नाउ ये मोल्स किस में आई है मिनट्स में. नाउ वी नो डैट 1 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड. नाउ रेट इज इक्वल टू 4 into 10 to the power minus 4 divided by 60. Now by solving this you will get the rate is equal to 6.67 into 10 to the power minus 6 moles per second. Now here second question is, in a reaction 2A converted into product. 2A किस में जा रहा है प्रोडक्ट में. तो now rate कैसे निकालेंगे बेटे इसमें 2A converted into product. now अब आपके आगे स्टाइकोमेट्री आ गई है that is the 2. तो इस केस में रेट कैसे निकालेंगे रेट इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी ए बाय टी टी. नाउ डिक्रीजेज अब जो कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज करिए 0.5 से 0.4. तो यानी ये आपकी फाइनल है ये आपकी इनिशियल है और क्या है आपका टाइम इंटरवल 10 मिनट्स का. तो नाउ रेट अब आपको निकालनी है -1/2 डी कैसे निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल 0.4 माइनस 0.5 divided by 10. Now here minus 0.1 minus minus cancel. So it comes out to be rate is equal to 1/2.1 upon में 10. क्लियर. तो अगर आप इसका पॉइंट उठाएंगे दैट विल बी 100. नाउ 1/200. सो सी दिस इक्वेशन -1/2 final minus initial concentration. Final comes out to be 0.4 and initial comes out to be 0.5.
Now minus 1 by 2, 0.4 minus 0.5. Now minus minus कैंसिल हो जाएगा एंड 1/200 रेट किसके इक्वल आएगी 1/200 एंड जब आप यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस you will get 0.005 moles per liter per minute. Moles per liter per minute. Now here the one more question is A plus B give rise product and the rate law is given by this rate is equal to K where R is the rate of reaction, K is the constant and A power half and B power 2. What is the order of reaction? We know that order of reaction always equal to sum of the concentration of the power. Order किसके इक्वल होता है sum of concentration power of each term. तो 1/2 plus 2. Now it comes out, अब LCM लेंगे 2. Now it comes out to be, that will be 1 and plus 2. 1 plus 2 and it comes out to be 3/2 or 2.5. Now next question, conversion of molecules X to Y. Molecule किस पे बदल रहा है X से Y में and this is second order kinetics. Order कैसा है second order. If the concentration of X increase 3 times, X की concentration कितनी increase कर दी है 3 times. तो how the rate of formation be affected? Formation of Y कैसे affected होगा? Now here we know that X converted into Y और रेट जो होगी वो कैसे होगी डायरेक्ट क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन एक्स एंड ईच पावर रेज टू इट्स कॉफिशिएंट. नाउ ईच कॉफिशिएंट रेट टू इट्स पावर. नाउ पावर कितना हो जाएगा 2. क्लियर. नाउ अब आपका फॉर्मूला ये हो गया. नाउ सपोज एक्स कंसंट्रेशन क्या है ए. एक्स की कंसंट्रेशन क्या है ए तो रेट हो जाएगी के ए स्क्वायर. क्लियर. रेट हो जाएगी के ए स्क्वायर. क्लियर. नाउ अब वो कह रहा है अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए. पहले ए थी अब कितनी इंक्रीज कर दी जाए 3 टाइम्स. नाउ अब रेट क्या हो जाएगी के डॉट 3a square and it comes out to be 9ka square. तो जो न्यू रेट आएगी इट्स बी 9 टाइम ग्रेटर देन द फॉर्मर रेट ऑफ रिएक्शन. क्लियर. तो कितना इंक्रीज कर जाएगी 9 टाइम्स. नाउ हियर वन मोर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट. तो ये आपको क्या दे रखा है K is equal to 1.15 into 10 to the power minus 3. And how long will 5 gram of this reactant take? भाई 5 ग्राम आपको मास दिया हुआ है कि कितना रिएक्टेंट लेगा. 5 ग्राम आपको रिएक्टेंट दे रखा है और कितना टाइम लेगा जब वो 3 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी इनिशियल है आपको 5 ग्राम और आपका फाइनल कंसंट्रेशन है 3 ग्राम. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फाइनल हो गई 3. ये आपकी इनिशियल और ये आपकी फाइनल. और रिएक्शन कैसी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वी नो डैट हाउ कैन वी सोल्व द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि टाइम निकालना है हमने. हाउ लॉन्ग. तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में K log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन एट टाइम T. नाउ 2.303 लॉग की वैल्यू क्या है 1. के की वैल्यू क्या है रेट कांस्टेंट 1.15 10 टू द पावर minus 3. नाउ लॉग ऑफ 5 इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 5 और एट टाइम T 3. ठीक है. तो log 5/3. log 5/3. Now how we solve this question? Now T is equal to 2.303 upon में 1.5
10⁻³ log 5 minus log 3, log 5 माइनस log 3, क्योंकि जब जो log पार्ट डिवाइड में होता है उसको हम क्या कर देते हैं माइनस, और मल्टीप्लाई में log हम क्या करते हैं ऐड। तो log 5 माइनस log 3। नाउ हम log बुक लेंगे, उसमें log 5 की वैल्यू देखेंगे और उसमें log 3 की वैल्यू देखेंगे। क्लियर? Now by solving this it comes out to be 0.2219 and approximate your answer will be 444.38. So your time कितना लगेगा बच्चे आपको? approximate 444 second. Now next question is time required for to decompose ethanol chloride. इथेनॉल क्लोराइड को जब हम डिकम्पोज करते हैं ना, तो उसकी जो इनिशियल होगी, कुछ भी होगी, हमें नहीं पता कितनी इनिशियल, लेकिन वो रिड्यूस हो जाती है हाफ, मतलब वो आधी हो जाती है। अब चाहे इनिशियल कितनी हो जाती है 60 मिनट्स में, मतलब 60 मिनट में कितनी भी कंसनट्रेशन हो वो आधी हो जाती है। इफ़ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ फर्स्ट ऑर्डर, अगर जो भी वो रिएक्शन है उसकी इथेनॉल क्लोराइड की जो डिकम्पोजिशन हो रही है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है, तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेट कांस्टेंट। बट वी नो दैट इफ़ वी हैव द हाफ लाइफ, सो वी हैव वन फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 divided by k. Now we have to solve the k. Now k is equal to 0.693 हाफ, और हाफ वैल्यू कितनी है 60 मिनट्स। हाफ वैल्यू क्या है आपकी 60 मिनट्स। नाउ बाय सॉल्विंग दिस यू विल अप्रॉक्सीमेट गेट 1.155 पर मिनट्स, यानी और के रेट कांस्टेंट कितनी आ जाएगी, जो अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको 60 से डिवाइड करना, और मतलब 1.155 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूँगी तब आपकी रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगी 1.925 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। Now next question is, what will be the effect of temperature on the rate constant? Now rate constant पे कैसे effect होगा? We know that rate is equal to rate constant, means rate of reaction बढ़ेगी तो rate of constant भी बढ़ेगा, but rate increases with the increasing of temperature. रेट हमेशा इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है विद द राइज ऑफ 10⁻0 राइज इन टेम्परेचर, मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस। तो रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन नियरली डबल्ड विद 10⁻0 राइज इन टेम्परेचर, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो एग्जैक्ट डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑन द टेम्परेचर, तो अगर जो एग्जैक्ट डिपेंडेंस होती है ना रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दैट इज गिवन बाय द अरेनस इक्वेशन। नाउ अरेनस इक्वेशन क्या कहता है? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर, दिस इज कॉल्ड ए एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में आर टी, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। सो हियर ए frequency factor, T temperature, R gas constant, activation energy, EA is the activation energy. Now next question, rate of a chemical reaction double for the increase of 10 Kelvin temperature. 10 Kelvin temperature in absolute temperature. Now we know that absolute temperature हमें पता है कि वो कितना होता है, that will be from 298 Kelvin, मतलब जो absolute temperature from 298 Kelvin means initial temperature 298 Kelvin था और उसका 10 Kelvin increase किया है, तो initial T1 तो हो गया आपके पास 298 Kelvin,
और T2 हो गया 298 plus 10 and it comes out to be 308 Kelvin. So here we have T1, we have T2. क्लियर? तो हमें क्या निकालनी है? एक्टिवेशन एनर्जी. तो नेचुरली बात है एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, तो वी हैव द फॉर्मूला. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट विल बी द बाय यूजिंग द Arrhenius equation. Arrhenius equation formula is log K2 upon में K1 EA activation energy divided by 2.303 R T2 minus T1 T2. Now putting the value, क्योंकि रेट कांस्टेंट वगैरह ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, तो अगर K1 K है, अगर मैं K1 की वैल्यू क्या पुट कर दूँ K, क्योंकि हमें तो पता है ना रेट कांस्टेंट कितना है, तो अगर मैं K1 को मान लूँ K, लेकिन जो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, तो जो रिएक्शन जो 308 केल्विन पे हो रही है, तो रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल है, तो K2 की वैल्यू क्या डालूंगी? 2K. तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, log 2K upon में K activation energy 2.303 R. Now T2, that will be comes out to be 308 minus. तो आपकी अगेन आई विल राइट दिस इक्वेशन, log 2K upon में K is equal to EA activation energy 2.303, R की वैल्यू जाती है 8.314. ठीक है. नाउ टेम्परेचर कितना है? 308, और माइनस करेंगे उसमें से हम T2 माइनस T1 ना, और T1 कितना है? 298, एंड इट कम्स आउट टू बी 10 डिवाइडेड बाय 298 मल्टीप्लाई 308. Clear? Now by solving this, see this. Now K से K cancel and log 2. Now log 2. एक्टिवेशन एनर्जी आप निकालेंगे. ठीक है. और इट कम्स आउट टू बी, एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2.303. आर की वैल्यू आपने क्या ली थी? 3.14. 10 अपॉन में 298 मल्टीप्लाई बाय 308. नाउ सी दिस एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो ये सारा आपका मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. log 2 दैट इज कम्स आउट टू बी 0.69. ठीक है. log 2 की वैल्यू हम लॉग टेबल से देखेंगे. log 2 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 10, एंड इट कम्स आउट टू बी 52 point, approximate value is 52. Now next question is activation energy for the reaction. आपको क्या करना है बच्चे? Activation energy for the reaction, that is 2HI converted into H2 plus I2 is, यानी आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 209.5 किलोजूल पर मोल. टेम्परेचर इज 581 केल्विन. क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल और द ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी. दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी तो मुझे अरेनियस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. नाउ ए अरेनियस फॉर्मूला क्या कहता है? के इज इक्वल टू ए ई ए माइनस ई ए अपॉन में अरेनियस इक्वेशन क्या कहती है बेटे? के इज इक्वल टू ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी. Now taking log on both sides, log k is equal to, है ना, log k is equal to माइनस ई ए अपॉन में आर टी. क्लियर? नाउ अब मुझे फॉर्मूला पता चल गया बच्चे कि जो k की वैल्यू है वो किसके एक्सपोनेंशियल पावर में देखिए फ्रीक्वेंसी फैक्टर, क्योंकि कांस्टेंट होता है, माइनस
EA अपॉन में RT. Now activation energy is 209.5. R value 8.314. Temperature 581. Now by solving this you will get the by taking the anti-log, क्योंकि ये क्या है आपका log की. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय सॉल्विंग यू विल गेट 18.832. ठीक है. नाउ अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो टेकिंग एंटिल लॉग, तो के हो जाएगा एंटिल लॉग दैट विल बी 18.83. ठीक है. तो जब हम एंटिल लॉग सॉल्व करते हैं तो जो आप पॉइंट से पहले के डिजिट्स होते हैं वो चले जाते हैं हमारे पावर्स में. ठीक है. पॉइंट्स के पहले के डिजिट किस में चले जाते हैं? पावर्स में. तो ये तो हमारा चला जाएगा पावर में. फिर हम 0.83 को क्या देखेंगे? एंटिल लॉग टेबल में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिटर्मिन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन. मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना है और डायमेंशन मीन्स मुझे इसकी यूनिट्स भी निकालनी है. ठीक है. So here the first equation is 3NO give rise NO2 and rate is KNO2. That means here if we see this power is 2. तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपकी? 2. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपकी? 2. नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है तो डैट मीन्स अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? रेट का यूनिट. नाउ रेट कैसे निकालते हैं? जो रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन हो जाएगी डेट विल बी द NO. क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है तो पावर होगी 2. मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? के की. तो के इज इक्वल टू रेट अपॉन में NO स्क्वेयर. रेट की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर. ठीक है. रेट की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल्स per liter power 2. Now by solving this, see moles per liter per second divided by moles per liter square. तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? मोल्स. ठीक है. क्योंकि पर लीटर है पर सेकेंड तो इसको अपॉन में कर सकते हैं. नाउ अब यहाँ पे क्या है? मोल स्क्वायर. अब लीटर इनवर्स फिर अपॉन में तो ऊपर चले जाते हैं, ये यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ जाएंगे. डेट इज लीटर स्क्वायर. डेट इज लीटर स्क्वायर. ना लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल से 1 मोल कैंसिल हो जाएगा. सो यू हैव लीटर पर मोल पर second and your equation is, your dimensions is liter per mole per second. Now next question. See, hydrogen peroxide plus 3 iodide ion plus H positive ions give rise water, 1 plus iodides I3 negative. Now if you see this rate is KH2O2 I minus, that means 1 power is K, 1 power is K है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? 1 + 1 इज इक्वल टू 2. यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? अगेन हेयर 2. बट वी हैव टू सॉल्व द डायमेंशंस. सेम हमने पिछले भी सॉल्व किया है. डायमेंशंस कितना आया था? लीटर पर मोल पर सेकेंड. बट वी हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन. नाउ रेट किसके इक्वल है? के. एंड कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी? H2O2 एंड आयोडाइड इनवर्स. के निकालना है. रेट अपॉन में H2O2 आयोडाइड माइनस. ना अब यूनिट देखें. हाँ जी, कैसे देखेंगे? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है. और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स पर लीटर. आयोडाइड की क्योंकि कंसंट्रेशन है तो वो भी मोल्स पर लीटर हो जाएगा. ठीक है.
तो अब यहाँ से हमें पता चला 1 लीटर से कैंसिल, 1 मोल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मोल रह जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा आपका लीटर। ठीक है, क्योंकि ये लीटर ऊपर चला जाएगा, तो आपका लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो योर अगेन डायमेंशन कम्स आउट टू बी लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगेन रेट अब क्या कहती है, CH3 CHO3 पावर 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 3 पावर 2, लेकिन वी हैव टू सॉल्व दिस। तो अगेन K इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू CH3 CHO पावर 3/2। क्लियर। ना अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, रेट की वैल्यू। कैसे निकालूंगी रेट की वैल्यू, K इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। रेट का यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, और इसकी पावर कितनी है 3/2। तो अगेन सॉल्व इट, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1/2 हम इसको सेपरेट कर देते हैं, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, अगेन मोल्स की पावर कितनी है 3/2। ये लीटर ऊपर जाएगा, लीटर की पावर क्या हो जाएगी 3/2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन रेट क्या दे रखा आपको बच्चे, रेट इज इक्वल टू CHO power 3/2. So order of reaction is 3/2. Now we have to calculate the unit of K. ठीक है, now rate is equal to K. अब मुझे यूनिट निकालनी है K की, तो rate is equal to 3/2. So here we can easily calculate the unit of K. Now यूनिट आप कैसे निकालेंगे, that is moles per liter per second. This is the unit of rate. Now how can we calculate the concentration of this ethanol, that will be mole per liter, पावर हो जाएगी 3/2. Now we can easily solve it, mole per liter सेकेंड, हेयर मोल की पावर कितनी है 3/2, एंड लीटर, हेयर लीटर इज ऑल्सो -3/2. नाउ हेयर मोल्स 3/2, अगर आप इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3/2 में से -2 गया, दैट विल बी द 1/2. ठीक है, तो लीटर की वैल्यू क्या आएगी 1/2, एंड मोल्स की यूनिट क्या हो जाएगी, माइनस लीटर की भी यूनिट क्या आ जाएगी 1/2, और मोल्स की यूनिट क्या आ जाएगी -1/2, और सेकेंड की यूनिट क्या आ जाएगी इनवर्स. तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट इज इक्वल टू K C2H5Cl. ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द K. ऑर्डर ऑफ, क्योंकि पावर 1 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई 1. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ K इन यूनिट ऑफ K. सो हेयर रेट इज इक्वल टू C2H5Cl इज इक्वल टू K. Now rate is moles per liter per second, and the concentration is mole per liter. Now K is equal to moles per liter per second, mole per liter, mole per liter into second into M into L. तो M से M कैंसिल, L से L कैंसिल, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी -1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
For the reaction 2A plus B give rise A to B. This is our reaction 2A plus B give rise A to B. And the rate is, the rate of reaction that will be equal to, that will be K, concentration of A and the concentration square of B. Now next is, with the K values यानी rate constant की value क्या है, K is equal to 2 into 10 to the power minus 6. तो अगर हम देखें हमारे पास rate है ये is equal to K A and B is power 2 and K values is this. Calculate the initial rate of the reaction. आपको क्या निकालना है बच्चे, इनिशियल रेट निकालनी है रिएक्शन की व्हेन A इज इक्वल टू 0.1 मोल्स पर लीटर और B कितना था 0.2. जब ये दो इनिशियल वैल्यूज थी तब मुझे आपकी क्या निकालनी है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है. ठीक है, और तब भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है जब A आपका कितना रह जाए, आफ्टर A इज रिड्यूस टू 0.06. तब रेट कितनी होगी जब आपकी ए कम हो गई, कितनी रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस हो गई कितना हो गया 0.06. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. हियर अगेन वी हैव यूज दिस फॉर्मूला, रेट इज इक्वल टू के पावर कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन बी स्क्वायर. नाउ हियर के वैल्यू इज 2 into 10 to the power minus 6. एक इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी है 0.1 ए की, और ये कितनी है 0.2 स्क्वायर. क्लियर. नाउ 2 into 10 to the power 6 into 0.2 multiply by 0.2 और 2 by 10 अपॉन में 2 by 10. तो ये हो जाएगा 10 to the power 6, 10 to the power 8, 6 7 8 और यू कहते 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 8 into 10 to the power minus 9 मोल minus 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. तो हमारी इनिशियल रेट कितनी निकल के आई है 8 into 10 to the power minus 9. Now next, when A is reduced to 0.1 moles per liter to 0.06, वो कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन तो थी 0.1 और वो कम होके हो गई है 0.06. तो इसका मतलब A की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.1 से शुरुआत होके 0.06 पे आ गई. तो कितनी कंसंट्रेशन रिएक्ट हुई है, डेट विल बी 1.1 से शुरुआत हुई थी और वो ख़त्म कितने पे हुई है 0.06 पे. तो ए की कंसंट्रेशन कितनी आई, दैट इज 0.1 माइनस 0.06 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.04. सी, तो ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.024. नाउ नेक्स्ट, अब ए की कंसंट्रेशन मुझे पता चल गई है, रेट मुझे के की वैल्यू जो है वो जो है मुझे पता है 2 into 10 to the power 6, लेकिन मुझे क्या निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन. बट हाउ कैन वी सॉल्व इट, बट द कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर मैंने देखें, डेट इज अगर मैं बी की रिएक्शन देखती हूँ तो देखो कितनी आ रही है. फॉर दिस रिएक्शन सी दिस, अगर 2A दो एटम ए के बी से रिएक्ट करता है तो ए कितने से करेगा, हाफ से. वो कह रहा है अगर दो एटम एक बी से रिएक्ट करता है तो 1 कितने से करेगा, हाफ एटम के. तो हेयर हमें पता चला जो बी की होगी वो कितनी होगी, हाफ इंटू 0.04 की आधी कितनी हो जाएगी 0.02, है ना. कितनी हो जाएगी 0.02. इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी 0.2, आई कितनी है, कितनी यूज़ की है 0.02, that it comes out to be 0.18. It comes out to be 0.18. Now again rate is equal to K A B square K into 10 to the power minus 6. ए वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अभी सॉल्व करी थी तो 0.06 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई थी
0.18 square. Now when you solve this, multiply all this, you will get the answer 3.89 moles per liter per second. Now next question is decomposition of the ammonia of the surface is zero order reaction. अमोनिया की डीकम्पोजिशन कैसी है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है. तो व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन? हमें क्या निकालनी है? रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, और जिसमें के की वैल्यू हमें दे रखी है. नाउ अगेन वी विल यूज दिस इक्वेशन. सी, अगर मैं कहूँ अमोनिया डीकम्पोज करता है किसमें? N2 प्लस H2. नाउ अगेन वी विल बैलेंस दिस इक्वेशन. तो एयर इज 3. नाउ अब हमें हमारी इक्वेशन क्या कहती है बच्चे? जो रेट आती है हम कैसे निकालते हैं इस इक्वेशन में? रेट इज इक्वल टू -1/2 डी NH3 अपॉन में dt विच इज इक्वल टू dN2/dt विच इज इक्वल टू dH2/dt. हम ऐसे सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को, है ना भाई? माइनस आपका रिएक्टर के कंसंट्रेशन में प्लस प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, और जो भी टर्म आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 1/पावर में. ठीक है, और ये किसके इक्वल है? हाउएवर हमें पता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है. इसका मतलब ये सारी इक्वेशन किसके बराबर पाएगी? के बराबर मिलेगी. सी दिस, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके इक्वल पाएगी? रेट के, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर 1 हो गई है और रेट हम ऐसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट वैल्यू के हो जाएगी. नाउ वी नो दैट के वैल्यू इज 2.5 10⁻⁻⁴. नाउ वी हैव टू सॉल्व द dN/d2. तो अब ये इक्वेशन किसके सॉल्व हो गई? डी, मुझे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है. नाउ dt इज इक्वल टू 2.5 10⁻⁻⁴. तो रेट ऑफ प्रोडक्शन आपकी, क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्शन हम ऐसे ही निकालते हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगी? 2.5 × 10⁻⁷. नाउ अगेन अब मुझे निकालनी है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. नाउ हाइड्रोजन की रेट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 1/3 dH2/dt which is equal to 2.5 × 10⁻⁻⁴ की इक्वल आएगी. नाउ मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ dt. नाउ हियर वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3. सो जब आप इसको मल्टीप्लाएंगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 7.5 × 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, decomposition of dimethyl ether leads to the formation of methane, H2 and CO and the reaction of the rate is given by. जब आप डाईमिथाइल ईथर को हीट करते हो तब आपका एक तो मीथेन बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और H2 बनता है. और रेट रिएक्शन की कैसे दे रखी है? लाइक दिस. रेट इज इक्वल टू के CH3O CH3. दिस इज द डाईमिथाइल ईथर पावर 3/2. यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है आपकी? 3/2. तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोड बाय द इंक्रीज इन द प्रेशर इन द क्लोज्ड वेसल. जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो बढ़ गई है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकाला गया है? प्रेशर को इंक्रीज करके. सो द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि प्रेशर है तो इसलिए हम रेट को भी किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. सो अब नाउ रेट क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन लेके हम क्या लेंगे? प्रेशर. तो अब रेट हो जाएगी, क्योंकि अब प्रेशर है तो हम उसको क्या लिखेंगे? प्रेशर CH3CO और ये आपका पूरा ब्रैकेट में किस में चला जाएगा? 3/2 में. नाउ आगे क्या दे रखा है? इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन द बार एंड द टाइम इन मिनट्स. अगर प्रेशर तो आपका रहेगा बार में और टाइम किस में रहेगा? मिनट्स में. देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड द रेट कांस्टेंट. रेट की यूनिट क्या होगी और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? नाउ वी कैन अगेन यूज द रेट. नाउ रेट इज इक्वल टू के
पावर किसके इक्वल है, पावर क्या है इसकी, किसके ऊपर लगाया है, डाइमिथाइल ईथर्स के ऊपर, और ये है 3/2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द के। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेट अपॉन में प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर 3/2। क्लियर। नाउ हाउ कैन वी go, रेट की कैसे निकालोगे, मोल्स पर लीटर, बट हियर द कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बार। ठीक है, बार पर मिनट। रेट कैसे निकलेगी, बार पर मिनट, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। नाउ अब प्रेशर किसका होगा, बार 3/2। नाउ अगेन के की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, बार पर मिनट इंटू बार 3/2। नाउ इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/2 कम्स आउट टू बी 2 माइनस 3 1/2। तो हेयर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के की यूनिट क्या बन जाएगी, बार माइनस 1/2 and minute inverse. Now next question, mention the factor that affect the rate of a chemical reaction. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। तो हमें पता है एक तो कंसंट्रेशन, एक टेम्परेचर, और एक किस पे डिपेंड करती है, कैटालिस्ट पे। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस कर देती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। रिएक्शन कैसी है, सेकेंड ऑर्डर है। एंड हाउ इज द रिएक्शन इफेक्टेड, अगर एक कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है उसकी एक बार तो डबल कर देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं, रिड्यूस टू हाफ। एक बार आपको डबल करना है, एक बार क्या करना है, रिड्यूस टू हाफ। नाउ सबसे पहले हमें ये हिंट दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर। तो कंसंट्रेशन हम ए मान लेते हैं, लेट द कंसीडर द कंसंट्रेशन ए, और जो क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। नाउ हियर कंसंट्रेशन ए है तो आपकी क्या हो जाएगी, के कंसंट्रेशन ए मान लिया मैंने, ए आपका रिएक्टेंट है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ए, तो के ए स्क्वेयर। नाउ इन फर्स्ट केस फर्स्टली यू डबल्ड इट, यानी के 2a स्क्वेयर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, के 2a स्क्वेयर है तो 4ka स्क्वेयर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल सी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, डबल, के 2a स्क्वेयर दैट इज 2 स्क्वेयर यानी 4ka स्क्वेयर। तो रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगी, 4 टाइम्स। नाउ अब सेकेंड में क्या रखा है, रिड्यूस टू हाफ। तो रिड्यूस टू हाफ करेंगे तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन स्क्वेयर। लेकिन अब आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन रिड्यूस करनी है हाफ, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 ka स्क्वेयर। नाउ वो हो जाएगी 4 टाइम आपकी 1/4 टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या फिर रिड्यूस हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। भाई आपका क्या इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पे, एंड हाउ कैन दिस टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिवली। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फर्स्टली वी सी दिस टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन जो इफेक्टिव कोलिजन है वो नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड द रेट ऑन द रेट कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करती है, इंक्रीज, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है विद द राइज ऑफ 10⁻0 डिग्री टेम्परेचर। सो लेट्स सी, रेट कांस्टेंट is nearly doubled
with the rise of temperature by 10 to the power 0 for a chemical reaction. अब टेम्परेचर का इफेक्ट हमने किसने सिखाया था भाई? अरेनस इक्वेशन. नाउ अरेनस इक्वेशन क्या है? के ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी. के क्या है? रेट कांस्टेंट. ए क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर. और अरेनस फैक्टर. ई एक्सपोनेंशियल टर्म. E A activation energy, R gas constant, and T is the temperature. So these are the all various symbols representation, that is K rate constant, A Arrhenius factor or the frequency factor, R gas constant, T temperature, E A is the activation energy. Now next, in a pseudo first order hydrolysis of ester in water. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है. फॉलोइंग रिजल्ट आया है. 0 सेकेंड में 0.55, 30 सेकेंड में 0.31, 60 में 0.17, 90 में 0.085. तो अब हमें निकालनी है. फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ 30 to 60 सेकेंड. तो फिर हम रेट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन? माइनस डी आर बाय डी टी. हाँ जी, किस किस के टाइम में? 30 to 60. तो क्या हो जाएगा? 0.30-60 के बीच फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 60 T2 minus T1. Clear? Now if you see this, when you solve this, you will get 0.14 upon 30, and by solution you will get 4.67 into 10 to the power minus 3 moles per liter per second. Now next, for a pseudo first order reaction, अब हमें क्या निकालना है इसमें? कैलकुलेट द pseudo फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट. अब हमें क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ के. हमें क्या निकालना है? के. क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में एट टाइम टी कंसंट्रेशन. ना हम शुरुआत करेंगे 30 सेकेंड से. टाइम 30 और 30 और आपकी शुरुआत किससे हो रही है बच्चे? सीधे इनिशियल 0.55 और 30 पे 0.31. तो फाइनल माइनस इनिशियल एट टाइम टी पे देखेंगे तो 0.55 अपॉन में 31. तो अगेन यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट 1.9 इंटू 10 to the power minus 2. अगेन अगर हम K2 निकालना चाहिए, हमारा K1 निकला था 2.3 अपॉन में टी. अब हम 60 सेकेंड पे निकालेंगे तो हमारा इनिशियल हो गई 0.55. अब डाइट टाइम टी पर कितनी हो जाएगी? 0.17. अगेन सॉल्व करोगे तो 1.9 इंटू 10 to the power minus 2. अब नाउ टाइम 90 डिग्री पे निकालेंगे तो अब 90 पे कैसे निकलेगा? डेट इज 2.303 अपॉन में 90. लॉग ऑफ इनिशियल कितनी थी? 0.55. 90 पर थी 0.085. अगेन बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट 2 इंटू 10 to the power minus 2. क्योंकि हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो ऐड ऑल दिस के वैल्यू. K1 प्लस K2 प्लस K3 एवरेज वैल्यू है डिवाइडेड बाय 3. जब आप ये करेंगे you will get answer, and this is the 1.98 10 to the power minus 2. Now next, a reaction is first order in A and second order in B. A में तो फर्स्ट ऑर्डर है और B पे क्या है? सेकेंड ऑर्डर है. चलो ठीक है भाई, दो रिएक्टेंट हो गए A एंड B. A फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेगा और B क्या फॉलो कर रहा है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो राइट इट्स डिफरेंशियल. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इट्स डिफरेंशियल. तो रेट कैसे निकालेंगे बेटा? माइनस कैसे निकालते हैं? रेट इज इक्वल टू A each, that is directly proportional to the concentration. Now A फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर, B फॉलो कर रही है सेकेंड ऑर्डर.
सो योर रेट इज इक्वल टू के. नाउ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, रेट कैसे निकालेंगे? माइनस डी आर वाई डी टी के ए बी square. So this is your differential rate equation. Now in second question, how is the rate affected? रेट पे क्या इफेक्शन आएगा अगर आप रेट जो बी की है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे? तो अगेन वी यूजिंग द फॉर्मूला रेट इज इक्वल टू के ए बी स्क्वेयर. नाउ के ए, नाउ अब 3 टाइम्स इंक्रीज करा है तो 3b स्क्वेयर है ना, 3b स्क्वेयर. तो इट कम्स आउट टू बी 9 टाइम्स. तो इसका मतलब आपका वैल्यू की आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी इंक्रीज कर जाएगी? 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगी. नो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये क्या कहता है वो कि अब ए भी डबल कर दो और बी भी डबल कर दो. अगेन वी यूजिंग रेट इज इक्वल टू के ए बी स्क्वेयर. रेट हो गई डबल, ए हो गया डबल, अब बी हो गया डबल, लेकिन बी का तो स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 2 जा 8. तो यानी आपकी रेट कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 8 टाइम्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिएक्शन हो गई. इनिशियल रेट ऑफ अ रिएक्शन यानी आर नॉट वॉज मेजर्ड. ठीक है. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर गिवन बिलो. ए है 0.20, तब बी था 0.30 और जो आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? 5.07 10⁻⁵. अगेन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपको दे रखी है ये. फिर जब आपने ए 0.20 था, बी आपका 0.10 था, तब रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही है? 5.07 10⁻⁵. ठीक है. नाउ अब ए 0.40 है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया आपने, लेकिन बी आपने आधी कर दी 0.05. ठीक है. तब आपकी इनिशियल जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी आई है? 1.43 10⁻⁻3. नाउ ये हमारी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी? अब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है ए और बी की. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. मान के चलते हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए की तो हो गई एक्स और बी की हो गई वाई, क्योंकि यही हमने सॉल्व करनी है, एक्स वाई तो सॉल्व करनी है. तो ए की हो गई एक्स, बी की हो गई वाई. ठीक है. क्योंकि ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इनिशियल रेट किसकी इक्वल होगी? के पावर एक्स बी पावर वाई. नाउ रेट क्या आ रही है उस टाइम पे? 5.07 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के. ये थी 0.20 और ये थी 0.30. अगेन वी हैव सेकेंड इक्वेशन. तभी भी आपकी रेट यही थी 5.07 इंटू 10⁻⁻5. तब आपकी रेट कितनी थी? 0.20 और ये कितनी थी? 0.1 वाई. हम अगेन यूज़ कर सकते हैं तीसरे इक्वेशन पे. जब आप रेट कितनी थी? 1.4 थी इंटू के 0.40 और बी की वैल्यू क्या थी? 0.05. नाउ डिवाइड दिस 1/2. आपने डिवाइड करना है 1/2 यानी 1/2 दिस वन. तो 5.07 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 5.07 10⁻⁻5. नाउ के, ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगी, के से कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो आपका क्या आ जाएगा? 0.20 डिवाइड कंसंट्रेशन एक्स, 0.30 कंसंट्रेशन वाई पावर वाई, 0.30 कंसंट्रेशन पावर वाई एंड 0.10. ये चीज़ भी इस चीज़ से कैंसिल हो गई. तो ना अब आपकी वैल्यूज़ क्या आएगी? 0.30 वाई अपॉन में 0.10 वाई, ये आएगा. क्लियर. नाउ हमें पता है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y से y भी हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो आपका क्या आएगा? 0.30 डिवाइडेड बाई 0.10 इट कम्स आउट टू बी 3. अब लेकिन पावर y तो ज़ीरो रहेगी, y की वैल्यू क्या रहेगी? आपकी ज़ीरो रहेगी. तो यानी आपकी जो y है वो कैसी रहेगी? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन.
नाउ अब सेम हम फिर से 2 क्वेश्चन लेंगे. नाउ 3 डिवाइडेड बाय 2. सेम अब आपने सॉल्व करना है. ये सॉल्व करके आपका, क्योंकि y की वैल्यू 0 आ रही है तो y हम क्या पुट करेंगे, 0. ठीक है. सो 0.05y, 0.03, क्योंकि y की वैल्यू 1 है तो ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के. तो ये चीज़ आपकी k से k कैंसिल हो जाएगा. ये चीज़ भी आपकी ख़त्म हो जाएगी. ये क्या रह जाएगा, 0.40x अपॉन में 0.20x, और ये सॉल्व करके आएगा 2^3. Now log 2.821 divided by x log 2. Now log 2 की वैल्यू भी हमें पता है, log 2.821 की वैल्यू भी पता है, हम log टेबल से निकाल लेंगे. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.4 और 1.5. तो यानी आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू के. ये तो डिपेंड करेगी 1.5 पे, लेकिन b किस पे डिपेंड करेगी, 0 पर. Now next question. The following result have been obtained during the kinetics of the reaction. भाई following reaction हमने देखी है और during the following kinetics of the reaction. So let's see what happened in this equation. So your equation is 2a plus b give rise c plus d. Here in experiment में a की है 0.1, 0.3, 0.3, 0.4. अगर हम देखें तो ए की कंसनट्रेशन है 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, और बी की है 0.1, 0.2, 0.4, 0.1. और जब ये कंसनट्रेशन थी तो इनिशियल रेट आपकी आई हुई है ये. ठीक है. तो हमें ये मतलब ए की कंसनट्रेशन दे रखी है, बी की दे रखी है, और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी दे रखी है. ना अब हमें निकालना है, पहले तो डिटर्मिन करना है रेट लो. रेट लो कहता है कि किस टर्म्स पे डिपेंड करता है, और फिर हमें निकालनी है रेट कांस्टेंट. तो शुरू करते हैं. लेट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चाहिए, तो हम मान के चलते हैं ए की ऑर्डर हो गई एक्स, बी की ऑर्डर हो गई वाई. ए की ऑर्डर हो गई एक्स, बी की ऑर्डर हो गई वाई. तो रेट कैसे होगी, के ए पावर एक्स बी पावर वाई. So we can again use this equation, solve these 4 values. K, क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन में पता है, रेट इज इक्वल टू के. जब फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा ए की वैल्यू भी 0.1 है, बी की वैल्यू भी 0.1 है, तो यू विल यूज के 0.1x 0.1y. जब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन 7 थी तब 0.3 0.2. ठीक है. तो ऑल दिस वैल्यू यू विल पुट इट, दैट फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. जब आपको ये चारों मिल जाती हैं देन अगेन यू विल यूज इट डिवाइडिंग बाय दिस. नाउ फोर्थ डिवाइडेड बाय 1. आपने क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है. नाउ 2.40 10⁻² डिवाइडेड बाय 6.0 10⁻³ बच्चे हमने ये दो क्यों लिए, लेट्स सी. देखिए कि ये दोनों इसलिए लिए क्योंकि इनमें हमारी बी की कंसंट्रेशन कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है ना. हमारी बी की क्या थी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी. तो नाउ के से के कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, है ना. तो यह 4 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन में 0.1 पावर हो गई x. नाउ 4 पावर 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अगेन 4 पावर x. ना x की वैल्यू आ गई 1. तो यानी आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ए की कंसंट्रेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ जब हमने बी कांस्टेंट लिया था, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, देन अगेन डिवाइडेड 2.88 10⁻⁴ एंड 7.2 10⁻². अगेन दिस डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. ठीक है. इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये से के कैंसिल हो जाएगा. तो 4 इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय x. ना ये जब कैंसिल करेंगे 2^2 इज इक्वल टू 2^x. तो x की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू 2. यानी कंसंट्रेशन बी किस पे डिपेंड करेगी, 2. अगेन वी यूज दिस रेट, क्या मिली थी, रेट इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन, ये पावर है x
ये पावर है y। नाउ के ए की पावर किस पे डिपेंड करेगी, x की वैल्यू क्या आई थी, डेट विल बी 0। कितनी आई थी 1। एंड b की वैल्यू क्या आई थी, स्क्वायर। सो यू विल यूज दिस इक्वेशन। नाउ अब हमारे पास सारी इक्वेशन हो गई, क्योंकि अब हमारे पास कंसंट्रेशन निकल गई है, एक्सपोनेंशियल टर्म निकल गई है। तो यहाँ से हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, के निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन पता है, कंसंट्रेशन पता है, तो हम आराम से अब हम निकाल सकते हैं के की वैल्यू। सेम ईच एंड एवरी इक्वेशन पे, ठीक है। जब हमारी रेट ऑफ फॉर्मेशन 7.3 तब कंसंट्रेशन 0.3 थी, ठीक है। नाउ जब कंसंट्रेशन 2.88 थी तो हमारी कंसंट्रेशन ए की 0.3 थी, बी की 0.4 थी। एंड सेम ईयर जब कंसंट्रेशन आपकी रेट ऑफ फॉर्मेशन 2.403, जब ए की कंसंट्रेशन 0.4 और बी की कितनी थी 0.1, एंड इट कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10⁻⁶ 6 लीटर स्क्वायर मोल। तो यहाँ से हमें पता चला जो रेट कॉन्स्टेंट है ऑलमोस्ट आपकी के की वैल्यू इक्वल आ रही है ईच एंड एवरी रिएक्शन में। नाउ हियर द वन मोर क्वेश्चन इज the reaction between A and B is the first order with respect to A. A and B first order आ रही है with respect to A and zero order with respect to B. A के रिस्पेक्ट में तो कैसी है, ज़ीरो है। सी दिस, A के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर किसकी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू B। तो अब हमें देखना है कि इस फिलअप्स को कैसे हमने फिल करना है, यानी हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, A की कंसंट्रेशन निकालनी है, हेयर हमें निकालनी है रेट ऑफ फॉर्मेशन, और फोर्थ में हमें क्या बताना है, ए की कंसंट्रेशन। तो अगेन वी यूजिंग दिस। अब हमें पता है हमारी रिएक्शन ए तो है फर्स्ट ऑर्डर, तो रेट कैसे मिल जाएगी, ए क्या है फर्स्ट ऑर्डर, बी क्या है ज़ीरो ऑर्डर, एंड दिस इज के। तो यानी ये वैल्यू 1 होती तो ये तो कैंसिल हो गया, तो रेट किसके इक्वल आएगी, के कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट किसके इक्वल आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए। नाउ अगेन वी यूज इट, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फर्स्ट है उससे कि हमारी रेट कितनी थी 2 पॉइंट इंटू 10⁻²। उस टाइम पे ए की कंसंट्रेशन थी 0.1, तो के कितना निकल के आएगा 0.2 मिनट इनवर्स। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। रेट की फॉर्मेशन कितनी है 4 इंटू 10⁻², ठीक है, 4 इंटू 10⁻²। ए की कंसंट्रेशन 0.2 है, तो हमें क्या निकालना है आपका रेट, ठीक है। तो हमें आराम से निकाल सकते हैं, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट 1 से हमने के निकाल लिया, एक्सपेरिमेंट 2 से हम क्या निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ए की कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारा रेट भी निकल चुका है, रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें पता है, बी की कंसंट्रेशन पता है, तो हमें किसकी निकालनी है, ओनली ए की। नाउ फ्रॉम द सेकेंड थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें क्या निकालना था, रेट। नाउ हमें पता है रेट किस किस के इक्वल है, ए की कंसंट्रेशन बी की। नाउ ए की है 0.2, बी की कितनी है 0.4, तो कम्स आउट टू बी 0.08। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से हमें फिर अगेन ए की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हमें पता है के की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻², रेट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है 2 इंटू 10⁻², ए की वैल्यू कितनी है 0.2, अब हमें बी की वैल्यू कितनी है 0.2, ए मुझे निकालना है, तो इट कम्स आउट टू बी 0.1 मोल पर लीटर। So students, I hope you understand these questions of the chapter chemical kinetics. So students, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।